And I hope that everyone are fine at their home. Okay, so moving to our unit 3, it's a run, and our poem 3 is run, and our lesson 3 is Nasiruddin aim. Okay, so shall we move to our poem? It's about run. What is meant by run? Bhagna, right? It is written by Mary Daunt. Okay, so shall we start our poem? Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. In the first stanza, poet आपको ये explain कर रहा है कि city से कहीं दूर, धूप में, country से दूर, चलो भाग चले, चलो run, run, run. Run into the raindrops, run near the trees, run little race with each little breeze. In the second stanza, the poet is explaining that चलो बारिश में खेलते, चलो पेड़ों के नीचे छाँव में बैठते, नेट मीन्स पेड़ के नीचे, रन लिटिल रेस विथ ईच लिटिल ब्रेथ, चलो रेस लगाते, हवाओं से रेस लगाते, रन डाउन द हिल साइड, रन अप द लेन, रन थ्रू द मीडोज देन रन बैक अगेन. वो बोलते कि चलो पापा, थोड़े जो पहाड़ जैसे होते हैं ना विलेज में, थोड़ा अप डाउन टाइप का लेन, वो सा वहाँ पे भाग चले, चलो चलो भाग चले, रन बैक अगेन, चलो वापस रेस लगाते, रन एंड रन एंड बी मैरी ऑल थ्रू द डे. मतलब दौड़ना कितना मज़े की बात होती है. मेरी मीन चेयरफुल जॉयफुल. रन टू द कंट्री अवे अवे, चलो कंट्री से कहीं दूर भागते चले. सो इन दिस poem the poet is explaining the children to overcome with their problems. मतलब एक प्रॉब्लम आ गई, जस्ट मूव ऑन अगेन, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़, जैसे कि रन रन रन, चलो कहीं दूर, आगे बढ़ो, वही वापस रिपीट मत करो. इन न्यू वर्ड्स, रेनबो मीन्स, रेन ड्रॉप्स मीन्स अ सिंगल ड्रॉप ऑफ अ रेन, राइट. नेथ मीन्स ब्रेथन, मतलब जो पेड़ के नीचे छाओ. ब्रीज अ जेंटल विंड, हल्की हल्की हवाएं. हिल साइड द स्लोपिंग साइड ऑफ अ हिल. मीडोज अ पीस ऑफ अ ग्रास land. Merry, cheerful, and livingly, right? Now you can see the beautiful picture here. Now moving to the question answers, what does the poem tell us to do? हमें poem क्या, poet क्या बोल रहा है हमें क्या करने के लिए? Write about the place where the poet wants us to run, right? ऐसी कोई लाइन्स लिखो जो पोइट हमें चाहता है कौन से जगह पे जाना चाहिए, हमें कहाँ भागना चाहिए. डू यू लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट? आपको खेलना अच्छा लगता है? वाई? रनिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज, राइट. नेम एनी 3 गेम्स दैट यू प्ले इन विच यू हैव टू रन. कोई भी 3 ऐसी गेम का नाम बोलो जिसमें आप भाग सको. वेन यू रन फास्ट, वॉट डू यू फील इज़ हैपनिंग इन योर बॉडी? जब आप भागते हो तो आपकी बॉडी में क्या फील होता है? से अलाउड. ओके, ब्रीथ एंड ब्रीज, मीट, फियर, ईच, मिडो. ओके, लेट्स स्पेल. यहाँ पे सम लेटर्स आर मिसिंग इन ईच वर्ड्स. यहाँ पे लेटर्स आर मिसिंग. राइट डबल ई और ई ए इन ईच वर्ड. ओके, यू हैव टू fill up the blanks by double e or double e a. Okay, so trees, what will come? E a या double e? Double e, right. Please, e a. Tease, e a. Teach, e a. Sleep, double e. Beep, double e. Feet, double e. Meat, double e, right. Now and more words with double e and e a, and put them inside the bubble. यहाँ पे जो ई डबल ई वाले एक साइड लिखने हैं और ई ए वाले सारे एक साइड लिखने हैं. ओके, say the words aloud one by one, follow the instruction and move your body according. This is a group activity we will do in the class. Okay, answer the question by looking at the picture on the opposite page. Okay, opposite page पे pictures दिया है, you have to make the complete the answer. Okay, what is happening in a picture 5? Picture 5 में क्या हो रहा है? The girl is diving into the water, right. What is Mohan practicing in picture 4? Picture 4 में मोहन क्या कर रहा है? He is practicing of high jump, right. Now moving to the third question, where are the boat racing? Sorry, for second one. What are the Anil and his friends pulling in the picture 3? Picture 3, what they are pulling? Of course,
tug of war we had done in our school, right? Anil are playing the rope. Third one, where are the boat racing in picture 2? Picture 2 में क्या हो रहा है? Boat racing. The boats are racing in a water. What are the boys doing in the picture 1? What they are doing? The boys are running race. Running. What are the girls doing in the picture 6? They are swimming. So now make one more question for each picture. यहाँ पे pictures दिए उसके नीचे blanks देते हो. You have to make the questions. Okay. So shall we start? How many? Use how many, what are, where are, is, how, why to make the questions. Okay, you have to make the question like this. Okay, in the first picture, what you see in the first picture? The boys are running, right? How we will make the question? How many boys are running in the race? This type you have to make the question. Okay, in the second picture, what you can see? Boat are there, human are there. So how you will make the question? How many boats are there in the picture? In the picture 3, what you can see? Where are the Anil and his friends pulling the rope? Now fourth picture. What is the number of Mohan's shirt? Right. Fifth picture. Who is looking at the girl? Sixth one. Where are the girls swimming? Like that. Moving to the Nasiruddin aim. Okay, this is the part of that lesson only. Okay. So shall we start? One day Nasiruddin was chatting with his friend. एक दिन नसीरुद्दीन और उसके दोस्त एक जगह पे बैठ के बातें कर रहे थे. They began to boast. नसीरुद्दीन अपनी वाहवाही करता था. नसीरुद्दीन ऐसा था जो अपनी वाहवाही ज़्यादा करता था, जैसे कि अपनी तारीफ खुद करना. नो वन कैन मैच माई स्किल इन द आर्चरी. उसने नसीरुद्दीन ने बोला कि मेरे से कोई अच्छा ही नहीं है आर्चरी, मतलब जो एरो तीर कमान बोलते हैं ना, उसमें कोई अच्छा नहीं है मेरे से. वो अपनी तारीफ खुद कर रहा था. आई स्टिंग द बो टेक एम एंड शूट द एरो. वो बोलने लगा कि मैं अपने हाथों में धनुष लेता हूँ, एरो मारता हूँ, वो अपनी जगह पे ही, टारगेट पे ही लगता है. हियरिंग दिस वन ऑफ हिज फ्रेंड इमीडिएटली ब्रॉट अ ब्रो एंड सम एरोज. ये बात सुन के सडनली उसका फ्रेंड क्या करता है, उसमें से फटाफट धनुष और उसका बाण लेकर आ जाता है. गिविंग देम टू नसीरुद्दीन, ही सेड हियर नसीरुद्दीन टेक दिस बो एंड एरो. उसने उसको बुलाया. नसीरुद्दीन ने बोला चलो चलो ये लो एरो और ब्रो, टेक एंड आर्म इट. चलो मुझे देखना है कि आप एम कैसे लगाते हो. देन पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ टारगेट ही सेड एम एट द टारगेट एंड शूट एन एरो. उसने बोला चलो शूट करो, अभी मैंने आपके लिए लगा दिया है. तो ओके, नसीरुद्दीन बोला ठीक है चलो. नसीरुद्दीन हेल्ड द ब्रो इन हिज हैंड, स्टंग इट, एम एट द टारगेट एंड शूट एन एरो. फिर वो अपने हाथ में लेता है एंड शूट करता है. वो द एरो डिड नॉट हिट द टारगेट. वो टारगेट पे लगा ही नहीं, वो बीच में नीचे गिर गया. सब लोग उसके फ्रेंड्स हा 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 हंसने लगे. हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग. दे सेड हे नसीरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट आर्म? उसने पूछा ये तुम्हारा आर्म है? Oh no, not at all. नसीरुद्दीन ने बोले ये मेरा आर्म नहीं है, दिस इज़ नॉट माई आर्म. नसीरुद्दीन डिफेंडिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को बचा रहा था. दे वजन माई आर्म, इट्स वॉज आज़ाद. उसका फ्रेंड का बता रहे ये आज़ाद ऐसे शूट करता है. आई जस्ट शोड यू हाउ आज़ाद शूट ऑन एरो. आज़ाद कैसे शूट करता है वो मैं दिखा रहा था. सेइंग दिस नसीरुद्दीन पिक्ड अप द अनदर एरो. फिर ये बोल के नसीरुद्दीन ने दूसरा एरो निकाला. once again he struck the bow. I aimed at the target and shoot the arrow. फिर वो वापस तीर कमान पे लगाता है. द टाइम द एरो फेल अ लिटिल फर्दर फ्रॉम देयर. और फिर ये एरो थोड़ा आगे जाके गिरता है उसे. बट इट सर्टनली डिड नॉट हिट द टारगेट. पर वो टारगेट में लगा ही नहीं. देर आस्क्ड नसीरुद्दीन एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो. फिर उसके फ्रेंड्स ने वापस बोले ये है आपका आर्म, मतलब ये है आपका शूट. तो नसीरुद्दीन ने बोला इवन दिस एम वॉज नॉट माइन. उसे बोले ये मेरा नहीं है, इट वॉज अ चीफ गार्ड एम. ये जो चीफ गार्ड है ना उसका एरो है. Now somebody remarked well. Now who's next on the list? उसने किसी बाजू वाले फ्रेंड ने बोला अभी किसकी बारी, अब किसकी तरह दिखाने वाले हो आप? Hearing this all the friends burst out laughing. सारे लोग हंसने लगे. नसीरुद्दीन did not say a word. नसीरुद्दीन ने कुछ नहीं बोला. He quietly picked up one more arrow and again, and this time नसीरुद्दीन was really lucky. फिर उसने तीसरी बार जब एरो लगाया तो वो तीर कमान पे लग गया, सही निशाने पे.
Everybody started at Nasiruddin, their mouths a gap in amazement. सारों लोगों के मुंह खुले के खुले रहे क्योंकि वो अचानक से लकीली वो जाके तीर कमान पे लग गया. सारे लोग खुश हो गए. Before anyone could say anything, Nasiruddin said trumpetly, "Did you see that? It was my aim." फिर नसीरुद्दीन ने बोला, देखा, ये है मेरा एरो. समझ में आया? Now इन दिस लेसन द पोइट इज सेइंग दैट यहाँ पे नसीरुद्दीन के बारे में बताया गया जो अपनी वाहवाही खुद करता है. वो हमेशा सारे काम लकीली नहीं हो सकते. इनफैक्चुअली कभी लकीनेस आ जाता है, जो हमारा किस्मत होते है वो कभी लक काम कर जाता है, हर बार काम नहीं करता है. ओके. न्यू वर्ड्स. चैटिंग मीन्स बातें करना, टॉक इन अ फ्रेंड इन अ इनफॉर्मल वे. आर्चरी मीन्स जो धनुष और बाण जो होता है, दैट इज कॉल्ड आर्चरी. स्ट्रिंग अ सेट ऑफ थिंग टाइट, जो उससे बंधा होता है, दैट्स. टारगेट मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को मारना, दैट इज कॉल्ड टारगेट. डिफेंडिंग मीन्स residing an attack made on someone or something. Amazement means feeling great surprise. Tremending in a way of show greatness, happiness, like. Moving to the next. Reading is fun. Question answers. What did Nasiruddin boast about? Nasiruddin अपने बारे में क्या बोलता रहा? He knows archery very good, right? Why did Nasiruddin take someone else's name each time he missed the target? Okay, नसीरुद्दीन बार बार दूसरों का नाम क्यों लेता था जब एरो टारगेट पे नहीं लगता था? तो Why did Nasiruddin say it was my aim the third time? जब थर्ड टाइम टारगेट पे लगा तब नसीरुद्दीन ऐसा क्यों बोला कि ये मेरा एम है? डू यू थिंक नसीरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी? आपको क्या लगता है कि आर्चरी में वो अच्छा था? रीड एंड एन्जॉय हियर. Nasiruddin Hoja. One day the king forced Nasiruddin Hoja to go into an hunt with him. एक दिन राजा ने नसीरुद्दीन को बोला कि तुम शिकार करने जाओ. When the hunting party returned in the evening, how did the hunt go? उसने राजा ने पूछा नसीरुद्दीन की हंटिंग कैसी रही. It was wonderful. Did you kill an animals? राजा ने पूछा किसी एनिमल्स को मारा तूने? No. Did you chase any animal? तो किसी को सताया तूने एनिमल्स को? तो उस नसीरुद्दीन ने बोला नो, नॉट एट ऑल. देन अगेन, डिड यू सी एनी एनिमल? उसने बोला तूने कोई एनिमल्स को देखा? उसने बोला नो. देन वाई डू यू से द हंट वॉज वंडरफुल? तो उसने पूछा तो तू कैसे बोल सकता है हंटिंग वॉज अच्छा गया तेरा, हंटिंग बहुत अच्छी थी. ओ डियर, ओ माई डियर, वेन यू गो टू द हंट सच डेंजरस एनिमल, इट इज़ ऑलवेज मार्वलस नॉट टू कम अक्रॉस होली एनी. उसने बोला कि अरे ऐसा डेंजरस एनिमल्स है, हंट करने से अच्छा वो सामने आ जाए तो भी हम डर जाते, तो जाने का फ़ायदा क्या है वहाँ पे? मार्वलस नॉट टू क्रॉस एनी वन. बी Nasiruddin Hoja yourself. Okay, so in this picture what would you have done if your grandpa स्लिप? आप क्या करोगे जब आपका ग्रैंडपा स्लिप हो जाएगी? तब ऑब्वियसली यू विल हेल्प द ग्रैंडपा, राइट? शूट द एरो विथ इट हार्ड टारगेट बाय मैचिंग द वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग. ओके, जैसे कि मैंने आपको मीनिंग्स एक्सप्लेन की, यू हैव टू मैच इट लाइक. ओके. चैटिंग, टॉकिंग इनफॉर्मली. अमेजमेंट, ग्रेट सरप्राइज. आर्चरी, shooting with a bow and arrow. Defending, protecting from attack, right? Target, the goal intended to be hit. Tremendously, happily and proudly, right? Moving to the next exercise. Replace the bold words with a word from the choir and rewrite the sentence. Okay, in this box the sentence are given जो इन द सेंटेंस जो बोल्ड लेटर्स है उसको हमें रिप्लेस करके जो यहाँ पे बॉक्स में आ दी है वो यूज़ करने. ओके. इन नो टाइम शी हिट द ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट. इन नो टाइम शी हिट द टारगेट, राइट? Nasiruddin was surely not a good archer. Nasiruddin was certainly not a good archer, right? The teacher said something about his good handwriting. He felt very happy. The teacher remarked about his good handwriting. He felt very happy. This is a picture of Rahul Gupta. ये picture राहुल गुप्ता की है. Write a paragraph about him. Okay. You have to write the paragraph. Moving to the second one. This is a Rajiv's family. There are a healthy family. See what each word does to remain healthy. Father,
अभी मुझे बोलो कि ये पिक्चर्स में लोग क्या क्या कर रहे हो. ओके, फादर व्हाट इज डूइंग? आयरन पंपिंग. मदर योगा. रोप स्किपिंग सिस्टर. ग्रैंडपा वॉकिंग. ग्रैंडमा ड्रिंकिंग मिल्क. राजीव jogging, right? Now use the word and but and make a many sentence as you can about Rajiv's family. राजीव की फैमिली यूज़ करके यहाँ पे सेंटेंस बनाने. ओके, बट क्या यूज़ करना है? बट एंड. ओके, you have to mix up the sentence. Grandpa and grandma get up early in the morning. Grandpa is walking but Rajiv is jogging. Grandpa and Rajiv's sister Sita are walking. Father is pumping iron but mother is doing yoga. Rajiv and his family members wake up early in the morning. Grandpa is walking and grandma is drinking milk. Rest of the two you have to make. Okay, it's just activity fun time. Watch the arrow pierce the apple. Okay, would you like to see the arrow piercing the red apple? Bring the place coach to your face. ये पेज आपके आँख के नज़दीक लाया. टच द स्टार. वो स्टार दिया है उसको टच करो विथ योर नोज, अपने नोज से, एंड देन लुक एट द पिक्चर. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन. फिल इन द ग्राइड विद द वर्ड्स गिवन बिलो. यू कैन यूज वन वर्ड मोर देन वंस. ओके, यहाँ पे बॉक्स दिया है विद द आंसर. नेम ऑफ द गेम्स. 4 गेम्स के नाम दिए. वॉट यू प्ले विद, मतलब वो किसके साथ खेला जाता है. वेर यू प्ले, कहाँ खेला जाता है, और उसमें कितने प्लेयर्स है तो वो लिखना है हमें. ओके, क्रिकेट में क्या किससे खेलते हो? ऑफकोर्स बैट एंड बॉल. वो कहाँ पे खेली जाती है? वेर यू प्ले इट? ऑफकोर्स ग्राउंड, राइट. एंड कितने प्लेयर्स के साथ खेला जाता है? 11, राइट. हॉकी. हॉकी में किससे खेलते हैं? ऑफकोर्स स्टिक एंड बॉल. एंड वेर डिड इट प्लेड? स्टेडियम. हाउ मेनी प्लेयर्स विल बी देयर इन द हॉकी? 11. टेबल टेनिस. नाउ टेबल टेनिस में किससे खेलते हो? बॉल एंड रैकेट, राइट. एंड वेर डिड इट प्ले? स्टेडियम. And how many players need to be played in table tennis? 2 to 4, right. Football. What play you play? Football, right. Where do you play it? Ground. How many players? Of course 11. Using the information in the guide, write a sentence about the each game one has been done for you. जैसे कि यहाँ पे क्रिकेट का लेके पूरा लिखा है. क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम. वी प्लेस इट विथ अ बैट एंड बॉल. देर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम. So you have to make a sentence like this only. Rest of the 3 one. Okay, I know that you can do it. Now the following words are used in various sports. ये सारे वर्ड स्पोर्ट्स में यूज किया जाते हैं. List them under the sports that there are used in. Okay, goggly, goal, LBW, penalty, free kick, penalty corner. Okay, some words may be used in more than one game. Okay, ये words बहुत से गेम में बोले जाते हैं. हॉकी में कौन से आते हैं? पेनाल्टी कॉर्नर आता है हॉकी में, और गोल, राइट. क्रिकेट में ये तो सबको पता होगा, गूगली एंड LBW, राइट. फुटबॉल में गोल, फ्री किक, पेनाल्टी, राइट. दैट्स ऑल. नाउ मूविंग टू टीम टाइम. ओके, हियर अ पपेट हेड. यू कैन यूज़ एन ओल्ड टेनिस बॉल. आपके पास जो अगर ओल्ड टेनिस बॉल है तो जस्ट टू मेक द हेड ऑफ द पपेट शी लुक लाइक अ लिटिल गर्ल इन अ स्कर्ट एंड इट वेरी क्विक एंड ईजी टू मेक इट. आपको क्या करना है? एक बॉल लेनी है प्लास्टिक की, टेनिस बॉल है, वो छोटी सी सुई ले लेनी है. फिर उसको जो वुलन थ्रेड होता है उसके ऊपर लगा देने बॉल के ऊपर, और छोटा सा क्लॉथ पीस लेना है, उसको 2 साइड से होल कर देना और उसको डॉल को पहना देना है और उसको अपने हिसाब से फेस दे देना है. Write 2 sentences on your puppet. Okay, my puppet is made up from the plastic stick. It can walk, dance and play. Just like that. Okay, thank you.